Hello everyone, welcome back to my channel. So today we'll start with the chapter 2 computation operations. So in this chapter we will cover the topic addition and subtraction, and this will be for 2 digit and 3 digit number, and with or without regrouping, means it may carry or it may not carry. Identification of correct addition and subtraction sentences based on given pictures. Calculate the total number of objects or add a large quantity of same number using multiplication as a repeated addition, right? Also in this chapter, question will be like identification of missing number in a number bond using addition or subtraction. Even the finding the value of missing figure or symbol in figure sentences, or there may be word problems based on addition and subtraction. So it is very much important chapter from IMO point of view, and we are not going to solve the PYQs only, but we will understand the concept in detail clearly, right? So okay, give a thumbs up and let's get started. So first mathematical reasoning, and we have question number 1 like this. So question is, the sum of the greatest and the smallest numbers on the given balloons is. Okay, so these are the 4 balloons, and we have the smallest and greatest number, and we have to find out the sum, means addition. Okay, so let's do it. So greatest number 414, right? Then add the smallest is 178. Okay, because other numbers are in 300 and 200 range. So 4 plus 8 is 12, carry 1. 7 plus 1 8 and 1 9. 4 plus 1 is 5, so 592 t, right? Simple but important. Okay, second question, which is the most suitable addition statement for the following picture? Okay, so statement based question आपके both addition as well as subtraction sentences पे भी आते हैं. It is the important type of question जो कि IMO every year this type of questions are being asked. Okay, so see carefully. अब यहाँ पे हमारे पास बॉक्सेस दे रखे हैं, इनमें कुछ नंबर्स ऑफ इरेजर्स हैं, लाइक 1 2 3 4 इरेजर्स इन 1 बॉक्सेज, एंड नंबर ऑफ बॉक्सेज 1 2 3 4 5 6 and 7. So we have 7 boxes and each have 4 number of items, or you can say erasers. तो इसका suitable addition statement क्या होगा? मीन्स हमको 7 times 4 को ऐड करना है, राइट? सो जिस भी ऑप्शन में आपको 7 times 4 को ऐड कर रखा है, दैट विल बी करेक्ट, राइट? सो ऑप्शन ए इज, इसमें हमने 4 को 4 times ऐड किया है, सो इट इज़ नॉट करेक्ट. बी ऑप्शन, यहाँ पे 5 times 4 एडिशन है. C 3 and 3 6 times. D 3 3 6 and 7 times 4 addition is done. So this is correct option. Got it? Next question 3, the difference between greatest 2-digit number and smallest 3-digit number is. And yes, this is very very important question. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, सो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर आपका होता है 100 एंड ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर इज 99. सो डिफरेंस कितना आ गया? 1. ऑप्शन सी. ओके, क्वेश्चन 4, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. ओके, सो यस, इस तरह के क्वेश्चंस भी या IMO में बहुत बार रिपीट हुए हैं. ये स्टेटमेंट कई बार थोड़ी लेंथी हो जाती है, कई बार इतना ही सिंपल आता है कि आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, वट एवर द वैल्यूज आर गिवन, दिस रिजल्ट इज करेक्ट और नॉट, राइट? सो हमें इसको डिटेल में ना भी सोल्व करें तो हमें पता लग जाएगा. लाइक इसका अगर हम लास्ट 1 digit ऐड करें तो 1 आना चाहिए लास्ट में, जबकि यहाँ पे 0 है, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट. ऑप्शन बी में अगर हम जाएं, सो दिस इज़ 980 minus 235.
सो जब 0 है 5 है और अगर हम इसे कैरी लेंगे सो 10 माइनस 5 आना चाहिए लास्ट में, और यहाँ पे 0 है, तो ये भी आपका राइट ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन अगर हम जाएं तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एडिशन एंड 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 2 0, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, 3 प्लस 9 9 प्लस 3 12 एंड 1 13, सो दिस इज करेक्ट एडिशन। से हम यहाँ पे देखें 420 में से माइनस किया है आपने 240, सो 0 माइनस 0 0 होना चाहिए यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 2 है, तो दिस इज wrong statement. Okay, next is question 5. Blank groups of 2 is same as 20. So ये question कह रहा है कि कितने ग्रुप्स हों 2 के। ओके, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ चॉकलेट्स हैं। ओके, सो हमें एक ग्रुप में 2 चॉकलेट रखनी है। ओके, तो हमें कितने ग्रुप बनाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप कितने हों कि वो 20 के इक्वल हो जाए। एंड अगर आपको टेबल याद है तो 2 10 जा इज 20 एंड 10 2 जा इज 20, तो अगर हम 10 ग्रुप्स बनाएं 20 के 2 के, तो इट इज इक्वल टू 20, ऑप्शन ए। गॉट इट। क्वेश्चन 6, सोनल वांट्स टू चूज ए शेप सम इज ग्रेटेस्ट। सो जिसका सम सबसे ज़्यादा हो तो कौन सा होगा वो शेप। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन 124, 120, 200, 396, 248 एंड 949। सो ए एंड बी ऑप्शन से तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऑब्वियसली ए बी तो आंसर नहीं हो सकता। लेट्स सी द ऑप्शन डी, 626 एंड 347। अब देखो सोल्व करने से पहले ही हमें आंसर पता लग सकता है। हियर द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 200 एंड हियर द स्मॉलर वैल्यू इज 300, मीन्स ये इस स्मॉलर से 100 ज़्यादा है। बट जब हम इनके हायर वैल्यूज अगर देखें तो ये 900 है और ये 600 है। ओके, कि अगर इसका 100 हम यहाँ भी ऐड कर दें तो ये 700 ही होगा, जबकि दिस इज़ द 900। सो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू। अदरवाइज आप सोल्व करेंगे तो भी आंसर आपका यही आएगा, क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 9 एंड 2 11 जाएगा, 6 एंड 3 आपका 9 होगा। राइट, सो सी इज द राइट। Question number 7. How many beads are there in the hundreds place of the abacus? Shows 492 subtracted from 325. ओके, सो 492 में से अगर हम 325 को सब्ट्रैक्ट करें, सो जो नंबर आएगा उसके 100 प्लेस पे क्या होगा बीट्स में, एबाकस में। ठीक है, सो 12 माइनस 5 7, तो यहाँ पे आपका 8 रह गया था, 8 माइनस 2 6 एंड 4 माइनस 3 1, सो 167 है, तो इसका 100 प्लेस ऐसे जाएगा, ये 1 पोजीशन पे है 7, 10 पोजीशन पे 6, 100 पोजीशन पे 1 है आपका, सो 100 पे आपका 1 रहेगा। क्वेश्चन 8, अरेंज द फॉलोइंग वैल्यूज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ओके, सो हमें P Q R S गिवन है और इसमें आपके वैल्यूज हमें पहले हम कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल अरेंज इन द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर। सो P को हम सोल्व करते हैं, 4 टेंस हम लिख लेते हैं, 22 टेंस, क्योंकि टेंस है तो हम पहले 0 लगा देंगे, फिर 22, देन 18 वंस, ये वंस है, एड इट 8 4 to 6 and 1 7 and 2, so 278. Similarly Q को हम सोल्व करेंगे, so it is 20 tens, 180 ones and 42 tens. So जो भी सम आएगा हम लिख लेते हैं इसका, it will be equal to 0, 8 to 10, 4 to 6 and 7 8, so this is 800. Right, R is 60 टेंस, 0 टेंस 0 ही रहेगा, 54 वंस, सो इट इज 654, तो ये आ गया आपका 654। S इज इक्वल टू 90 वंस,
8 tens and 300 ones. So it's 0, 17 and 4. So 470, right? So yes, now arrange these values in smallest to greatest. तो smallest value आपका P है. Okay, so हम यहाँ लिख लेते हैं जिस ऑप्शन में P है. So yes, P. Then S. ओके एस टू ऑप्शन है हमारे पास. अब इसमें तो P है नहीं, तो ये तो हमारे कट हो जाएंगे. S के बाद आएगा यहाँ पे R, राइट. सो यहाँ पे Q है, तो दिस ऑप्शन इज नॉट R एंड देन द Q. सो ऑप्शन B इज करेक्ट. स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में बहुत जल्दबाजी में करेंगे, वो PS देख लेंगे और दे विल क्लिक द फर्स्ट ऑप्शन. ये इस तरह की मिस्टेक्स बहुत होती हैं. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग. आप थर्ड ऑप्शन तक पक्का उसे चेक करेंगे, देन ओनली यू विल टिक द आंसर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स शोन बाय टू एबाकसेस इज. सो यहाँ पे नंबर शोन है तो आपको बताना है. तो फर्स्ट को हम सोल्व करते हैं. 1 2 3. लेट्स राइट इट. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने लिख लिया. 1 2 3 4 5 6 7, राइट. देन 1 2 3 4. बिकॉज यहाँ पे 100 प्लेस पे 4 है तो ये लार्जर वैल्यू है, तो हम इसको ऊपर लिखेंगे. 1 2 1 2, राइट. नाउ डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस बताना है, तो लेट्स सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज. 12 माइनस 7 5, 11 माइनस 9 2, तो डिफरेंस इज 25. नेक्स्ट क्वेश्चन 10. How many tortoises are there in each of 5 equal groups? Okay. So क्वेश्चन है कि कितने टॉर्टॉइज आएंगे अगर हम 5 इक्वल ग्रुप्स बनाएं, कि हम इन टॉर्टॉइज के 5 ग्रुप्स बनाएं और उनमें इक्वल नंबर ऑफ अगर टॉर्टॉइज रखने हो तो. सो पहले हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ टॉर्टॉइज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So we have total number of tortoises are 15 and we have to make the 5 equal groups. So let's divide it by 5 means 3. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास 15 चॉकलेट्स हैं, राइट. आपके 5 फ्रेंड्स हैं, ओके. तो आपको इक्वली अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. फॉर एग्जांपल आपके हैप्पी बर्थडे वाले दिन, तो आपको कितने चॉकलेट्स एक फ्रेंड को देनी होंगी कि इक्वली सबको मिल जाए, राइट. अदरवाइज किड्स फाइट फॉर मोर नंबर ऑफ चॉकलेट्स. सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पॉर्टेंट. सो आप इसको इस वे में भी ले सकते हैं, या आप सिंपली डिवाइड कर लें. 15 डिवाइडेड बाई 5, तो इट विल बी इक्वल टू 3. ओके, 3 5 जा इज इक्वल टू 15. और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हम अगर एक ग्रुप में 3 टॉर्टॉइज रख रहे हैं, 1 ग्रुप, सो हमारे 5 इक्वल ग्रुप्स बनेंगे. 3 ग्रुप लाइक 4 ग्रुप एंड 5 ग्रुप. गॉट इट. सो हमें कितने टॉर्टॉइज रखने पड़ेंगे एक ग्रुप में? 3. सो ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 11. इफ स्टार प्लस बॉल और प्लस बॉल इज इक्वल टू 42, या फिर हम इसको कह सकते हैं स्टार प्लस सर्कल इज इक्वल टू 42 एंड सर्कल इज इक्वल टू 12, देन द वैल्यू ऑफ स्टार इज. ओके. सो हमें एक सर्कल की वैल्यू यहाँ 12 गिवन है, यहाँ पे भी हम 12 रख सकते हैं. लेट्स राइट इट अगेन हेयर. सो हमें स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके. सो ये स्टार की वैल्यू होगी हमारे 12 प्लस 12 इज 24. सो अगर हम 42 में से 24 माइनस कर दें तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू स्टार. तो ये हमारा हो जाएगा 12 माइनस 4 8. ओके, 8 एंड 3 माइनस 2 इज 1. तो ये आंसर आ जाएगा 18. नेक्स्ट क्वेश्चन 12. इफ सब्ट्रैक्टेड स्माइली फ्रॉम 50 वी गेट द रिजल्ट इज 50. ओके, मीन्स इस वैल्यू को हम 50 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें रिजल्ट भी 50 आ जाता है. फॉर एग्जांपल हम कुछ भी वैल्यू लिख लेते हैं. यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क ही लिख लिया और ओके
50 से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने सब, और आंसर हमारा 50 आता है। तो ये कब आता है? जब हमारे ये वैल्यू अगर जीरो हो, क्योंकि जीरो कभी भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वही वैल्यू रहेगी। लाइक 5 में से अगर जीरो आप निकाल दें तो 5 ही रहेगा, तो 50 में से अगर आप जीरो निकाल देंगे तो 50 ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ स्माइली की वैल्यू हो जाती है जीरो, राइट। Next question 13. Which of the following subtraction sentence is based on the given picture? Yes, these kind of questions are very important. इस 2023 के भी क्वेश्चन में ये आया हुआ है, सो लेट्स मार्क इट, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कैलकुलेट करने हैं, फिर जितने क्रॉस कर रखे हैं उनको आपको निकाल देना, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देना है, राइट। So let's count the given oranges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Right? 13 crossed oranges हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So it is equal to 7. So option B. Question number 14. What is the sum of all 3-digit numbers shown on the star? So this is the given star, और इस पे बहुत तरह के नंबर हैं आपके 2 digit and 3 digit। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी नंबर्स आएंगे वो 2 और 3 digit आएंगे, राइट। सो यहाँ पे हमें 3 digit जितने भी नंबर गिवन हैं उनका सम करना है। सो 243 एंड 343 हो गया, राइट, एंड 632। So let's add these values, 3 to 5, 4, 3, 7 and 6 plus 3, 9. So 975. Question 15. I am more than 10 plus 10 means 20, right? But less than 20 plus 5 means 25. Who am I? इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, although this is the very much easy question, but yes, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं IMO for class 2। सो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो 20 से 25 के बीच में आता हो। 18 नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, 27 क्योंकि ये 25 से ज़्यादा है, मोर देन 25 है तो नहीं आएगा, 23, ओके, ये आपका 20 और 25 के बीच का नंबर है। क्वेश्चन 16. देयर आर 40 चिल्ड्रन एट अ पिकनिक, ईच चिल्ड्रन हैज़ 2 टॉयज एंड 4 चॉकलेट्स। How many more chocolates are there than toys in all? So 40 children हैं और हर चिल्ड्रन के पास 2 टॉयज़ हैं और 4 चॉकलेट्स हैं। तो हमें बताना है, तो चॉकलेट्स आपको पता ही लग रहा है कि चॉकलेट्स 4 हैं एज कम्पेयर टू टॉयज़, दीज आर मोर, बट कितने मोर हैं हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज़ फर्स्ट। तो टॉयज़ कितने होंगे? 40 चिल्ड्रन हैं, हर एक के पास 2 हैं, तो 40 + 40 हो जाएगा। अब चॉकलेट को हम C से लिख देते हैं। सो ये हम 40 चिल्ड्रन हैं, हर एक के पास 4 हैं, तो ये हम 4 टाइम्स ऐड कर सकते हैं, राइट। सो चॉकलेट्स कितने ज़्यादा होंगे? 40 + 40, ये तो बराबर हो गया, तो जो रिमेनिंग 40 + 40 है यही एक्स्ट्रा है, यही मोर वैल्यू है, तो 40 + 40 इज 80, राइट। सो हमारे पास 80 चॉकलेट्स ज़्यादा हैं देन toys in all. Question 17. Neha wants to put 27 strawberries equally in 3 boxes. Each box will have blank strawberries. अब ये भी हमारा उसी तरह का क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है और 3 बॉक्सेस में रखने हैं, तो एक बॉक्स में हमें कितना रखना होगा। ये क्वेश्चन आप तब सोल्व कर सकते हैं जब आपकी टेबल्स आपको बहुत अच्छे से लर्न हो। तो आप IMO की जब भी तैयारी करें, आपको टेबल्स 10 तक बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 6, 7, 8, 9 की बहुत ज़्यादा आती हैं, बिकॉज 2, 3, 4 एंड 5 तक की बहुत ईजी हैं, वो आपको पहले भी लर्न कराई जाती हैं। अप टू 10 ऑल टेबल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट, बिकॉज यहाँ पे अब देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी 27 है, कितने बॉक्सेज में रखनी है? 3 बॉक्सेज में रखनी है। सो ये ईच बॉक्स में अगर हम 9 रखें, 3 9 जा 27, राइट। तो ईच बॉक्स में अगर हम 9 स्ट्रॉबेरी रखेंगे और 3 बॉक्सेज हैं, तो 1 में 9,
सेकेंड बॉक्स में 9 + 9 18, 3 बॉक्स में 18 + 9 27. ओके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. क्वेश्चन 18, रेहाना did this subtraction problem. Okay, which addition problem shows that she got the right answer? Okay, क्वेश्चन 17 भी आप मार्क कर लें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन. क्वेश्चन 18 में कह रहे हैं रिहाना ने ये वाला सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन एक गिवन है, ये सोल्व किया है. एंड देन ऑप्शन है A B C D कि किस एडिशन मेथड से हमें ये फाइंड आउट होगा कि इसने ये सब्ट्रैक्शन सही किया है. राइट, 85 - 43. तो आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज इट इज़ करेक्ट. 5 - 3 2, 8 - 4 इज 4. सो दिस इज करेक्ट. बट हम ऑप्शन से हमें बताना कि कैसे पता लगेगा. सो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, जो आपके लास्ट 2 वैल्यूज है ना, सब्ट्रैक्ट, जिसको सब्ट्रैक्ट किया वो और जो आपका रिजल्ट आया, इन 2 वैल्यूज़ को आप ऐड करें तो आपकी फर्स्ट वैल्यूज़ जो हायर वैल्यू है वो आनी चाहिए. अगर तो 43 + 42 हम करते 85 आता है, तो इट मीन्स दिस सब्ट्रैक्शन इज राइट. सो हमें ऑप्शन में यही फाइंड आउट करना है कि 43 + 42 होके 85 जिसमें आए. 42 85 नो, 43 + 85 नो, 42 + 43. और यहाँ पे आप अगर इसे सोल्व करेंगे तो इट इज़ 5 and 8. ओके, सो ऑप्शन सी. आप ना भी सोल्व करें तो इट इज़ ओके कि 43 + 42 लास्ट 2 वैल्यू जिसमें की हैं और आपकी जो लार्जर वैल्यू है वो आए. सो दिस मैथड इज करेक्ट. क्वेश्चन 19, Varun puts 5 cookies in each box for the sale. How many cookies did he use in all to put in 5 boxes? Okay. So वरुण के पास 5 बॉक्सेज हैं. ओके, और एक बॉक्स में कितने कुकीज़ हैं? 5 कुकीज़ हैं. अब आपका टेबल वर्क करेगा यहाँ पे कि ये मल्टीप्लाई करना है. 5 बॉक्सेज और एक बॉक्स में 5 कुकीज़ हैं, तो 5 5 जा कितनी कुकीज़ हो गई? 25. राइट. 20 question. Sonia has 2 boxes. Okay, each box has 5 sweets in it. She gave 6 sweets to her sister. How many sweets are left with Sonia? सोनिया के पास 2 बॉक्स है, ईच बॉक्स में 5 स्वीट्स हैं. मीन्स सोनिया के पास टोटल स्वीट्स हो गए 10 एंड उसने 6 स्वीट्स किसको दे दी? अपने सिस्टर को. सो कितना बचा? 4. Everyday mathematics section, question 21. Shivam had 34 toy cars and Raman had 49 toy cars. How many toy cars do they have in all? Simple addition problem. Okay, इसको हम word problem बोलते हैं और इसको आप simply add करेंगे तो you will get the answer. So 4 and 9, 13. 9 + 4 is 3. 1 कैरी हो गया. 3 + 4 7 and 1 8, 83. ऑप्शन बी. 22 क्वेश्चन. There were 456 people at the stadium. If 143 of them were men and the rest are women, then how many women were there? Okay, so हमारे पास टोटल नंबर है 456, उसमें से मैन है आपके 143. सो अगर टोटल में से हम मैन को निकाल दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिमेनिंग है वो आपके पास विमेन का नंबर आ जाएगा. बट यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे तो सोल्व नहीं करना है, जस्ट आपको सेंटेंस दिखाना है, सब्ट्रैक्शन सेंटेंस. सो 456 - 143, ऑप्शन ए इज राइट. क्वेश्चन 23. Mrs. Malhotra needs 765 cakes to distribute. She had 553 cakes in the box. How many more cupcakes she must buy? Okay. So उसको रिक्वायरमेंट है, मिसेज मल्होत्रा को रिक्वायरमेंट है 765 की. ऑलरेडी उनके पास है 553. तो कितने और चाहिएंगे? इसमें से अगर हम माइनस कर लेंगे वैल्यू तो हमें पता लग जाएगा कि कितने और चाहिए हैं कपकेक्स. 5 - 3 2, 6 - 5 1, 7 - 5 is 2. So 222. Right. Question 24. Ridhima has, these are number of pencils and erasers. If she gave 2 pencils and 1 eraser
to each of her 4 friends, then blank will be left with her. Okay, तो रिधिमा के पास कुछ नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं, कुछ नंबर ऑफ इरेजर्स हैं, उसके 4 फ्रेंड्स हैं और वो सबको टू पेंसिल्स ईच फ्रेंड एंड 1 इरेजर दे रही है, तो उसके पास क्या रहता है फिर? लेट्स सी. So let's count the number of pencils first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have 10 number of pencils and 5 number of erasers. So हर फ्रेंड को, अगर 4 फ्रेंड है और सबको 2 पेंसिल्स दे रहे हैं, तो 8 नंबर ऑफ पेंसिल्स देना पड़ेगा. सो 10 - 8, तो रिमेन्स क्या रहेगा? 2 पेंसिल्स. अब आते हैं इरेजर. सो 4 फ्रेंड्स हैं, सबको एक इरेजर देना है, तो 5 - 4 इज 1. सो इसके पास, रिधिमा के पास रहेगा 2 पेंसिल 1 इरेजर. सो 2 पेंसिल 1 इरेजर, ऑप्शन ए. Question 25. There were 5 cows in a farm. How many cow legs were there in farm altogether? Yes. This is again very important question, because ये इस तरह का क्वेश्चन अल्टरनेट पूछा जा रहा है IMO में. एक साल छोड़ देते हैं या किसी सेट में एवरी ईयर भी ये पूछा जाता है, तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. एंड येस, गुड थिंग इज़ कि हमेशा जो भी एनिमल के बारे में पूछा जाएगा उसका फिगर गिवन होगा. सो फिगर में आप काउंट कर सकते हैं कि आपके लाइक कभी लायन का पूछा जाता है, कभी अदर एनिमल्स का, यू कैन काउंट द गिवन लेग्स. सो 5 काउस हैं, ओके, एंड 1 काउ के लेग्स कितने हैं? 4. सो टोटल उसने कितने लेग्स देखे? 20. ऑप्शन डी. अचीवर्स सेक्शन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, बिकॉज इसकी जो मार्क्स की वेटेज होती है वो डबल होती है. आपके अदर सेक्शन से जो क्वेश्चन आएंगे दैट इज़ 1 मार्क पर क्वेश्चन, बट जो अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चन जाते हैं IMO में, उसमें 2 मार्क्स पर क्वेश्चन जाता है, राइट. सो ये आपको बहुत ध्यान से करना है. क्वेश्चन 26. फाइंड द वैल्यूज ऑफ P and Q रेस्पेक्टिवली. सो यहाँ पे P, ये स्टेटमेंट है P माइनस QP. सो आपका ये रिजल्ट है. तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है तो आप ऑप्शंस के थ्रू सोल्व करेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा. कि इनके अकॉर्डिंग इन्होंने दिया है कि P की वैल्यू है 0 और Q की वैल्यू है 8. लेट्स पुट इन द गिवन सेंटेंस. P को अगर हम 0 रख दें, 0 - 0 0 हो जाएगा, राइट. और Q की जगह अगर 8 रख दें, 0 - 8, तो यहाँ पे मतलब 0 आना चाहिए, P इज 0, बट दैट्स नॉट करेक्ट, राइट. सो ये आंसर ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा. नाउ लेट्स सी द ऑप्शन बी. सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ P एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ Q. सो P की जगह अगर हम 8 करते जाएं, राइट, एंड Q की प्लेस पे हम 0 रख दें, तो 8 - 8 0, गुड. एंड 8 - 0, यहाँ P की वैल्यू 8 है तो 8 आएगा, राइट. तो ये कह रहा है कि अगर हम P को 8 रख दें, 8 8 0 8, so 8 0, this will be the answer. Okay, yes. So yes, 8 - 8 0, 8 - 0 is 80, right. So option B is correct. So आप इस तरह solve करेंगे, it will be much easy for you. Question 27. Find the values of P, Q and R respectively. So ये एक तरह से values ऐसे given हैं और आपको solve करते जानी है. It is easy, अगर आप इसे करेंगे solve, so it is quite easy. So 80 + P is equal to 97. तो यहाँ से अगर हम जब P की वैल्यू सोल्व करेंगे तो P is equal to 97 और 80 यहाँ से जब अपोजिट साइड जाएगा इक्वल साइन के, तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, राइट. सो 7 and 1. सो P जहाँ पे आपका 17 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ओके. देन Q पे आते हैं. 97 - 12 is equal to Q. So let's write it. 97 - 12. So 7 - 2 5, 9 - 1 8. So Q is 85. Okay. किसी और ऑप्शन में आपका Q 85 नहीं है तो दिस इज़ राइट, बट हम R को भी सोल्व करते हैं. R Q + 20 is equal to R. So R यहाँ पे जाएगा Q, that is 85 + 20. So 5 and 8 + 2 10. So yes, option C is correct. Question 28. Identify the number. Yes, ये अचीवर सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है. ये आता ही है
या तो हर सेट में मिलेगा या आपको 1 और 2 सेट में तो ज़रूर ही मिलने वाला है. ओके, सो यस, आई एम एन ओड नंबर. सो इसमें 3 and 4 स्टेटमेंट गिवन होती हैं. इस तरह के क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे. आपको ये स्टेटमेंट किस ऑप्शन के लिए सबसे सूटेबल है उसको फाइंड आउट करना. आई एम एन ओड नंबर मीन्स हमें सिर्फ ओड नंबर चाहिए. दिस इज इवन नंबर, सो इट कांट बी द आंसर. दिस इज ओड नंबर, ये हो सकता है. दिस इज इवन नंबर, तो हम नहीं सोचेंगे इसको. 63 इज ओड नंबर, सो ये भी हो सकता है. सेकेंड स्टेटमेंट है आई एम लेस देन 80 बट मोर देन 50. सो जो भी ओड नंबर होगा वो 50 से ज़्यादा होगा, 80 से कम होगा. अब बी ऑप्शन अगर हम देखें तो ये तो हमारा 27 है, मीन्स 50 से मोर नहीं है, सो ये आंसर नहीं होगा. 63 आपका 50 से मोर है और 80 से लेस है, तो आंसर तो ये होगा. ओके, बिकॉज और तो ऑप्शन हमारे पास बचा नहीं है, बट हम रिमेनिंग स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई करेंगे. माई 10th डिजिट इज ग्रेटर देन द 1st डिजिट. इसका 10th डिजिट है 6 एंड 1st डिजिट है 3. तो येस, 10th डिजिट 6 इज ग्रेटर देन द 1st डिजिट, दैट इज 3. The sum of my digits is 9. 6 plus 3 is 9. Okay, so this is also correct. Question 29. A shopkeeper sold twice as many eggs on Sunday than on Saturday, and he sold 4 times as many eggs on Wednesday than on Sunday. He sold 25 eggs on Saturday. How many eggs did he sell on Sunday and Wednesday respectively? ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ये डेज लिख लें कि संडे को कितना सोल्ड हुआ, सैटरडे एंड वेंसडे. उसके बाद जिसकी वैल्यू गिवन है सबसे पहले वो ही सोल्ड 25 एग्स, राइट. 25 हम लिख देंगे सैटरडे के नीचे. नाउ रीड द सेंटेंस अगेन, और अब हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे. शॉपकीपर सोल्ड ट्वाइस एज मैनी एग्स ऑन संडे. संडे को ट्वाइस एग्स सोल्ड आउट हुए, किस दिन से कंपैरिजन है, देन ऑन सैटरडे. सो संडे को सैटरडे से ट्वाइस मीन्स ये अगर 25 है तो संडे को उसने 50 सोल्ड किए हैं. एंड ही सोल्ड 4 टाइम्स एज मैनी एग्स ऑन वेंसडे. वेंसडे को 4 टाइम्स, बट किसका 4 टाइम्स, देन ऑन संडे. ओके, तो संडे को जितना किया है उसका 4 टाइम्स वेंसडे को. सो अगर 50 + 50 + 50 + 50 4 टाइम्स कर लो, या फिर आप सिंपली 50 × 4 कर लो. सो इट इज़ इक्वल टू 40 एंड 5 4 जा 20, 200. अब हमें बताना क्या है, हाउ मैनी एग्स डिड ही सेल ऑन संडे. संडे को कितना किया, एंड वेंसडे रेस्पेक्टिवली लिखा है तो हमें ये एडिशन नहीं करना. अगर इन ऑल या ऑल टुगेदर होता तो हम इन्हें दोनों डेज का हम एडिशन करते. रेस्पेक्टिवली मीन्स हमें पहले संडे का बताना है फिर वेंसडे का बताना है. तो संडे को किया 50, किस ऑप्शन में 50 है, यहाँ. एंड वेंसडे को किया 200, सो दिस इज 200, ऑप्शन डी, राइट. क्वेश्चन 30. फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्कल. सो यस, 4 circles plus 2 triangle is equal to 96. 2 circle 2 triangle is equal to 62. सो हमें सर्कल की वैल्यू निकालनी है. सो आप 2 सर्कल एंड 2 ट्राइंगल यहाँ पे देखें, दिस इज इक्वल टू दिस, और ये किसका है 62. तो यहाँ हम 62 रख सकते हैं, तो हमारे पास 2 सर्कल की वैल्यू आ जाएगी. सो 2c इज इक्वल टू 96, और जब ये वैल्यू आपका इक्वल साइन से इधर जाएगी तो माइनस हो जाता है 62. 6 - 2 4, राइट, एंड 9 - 6 इज 3. सो 2 सर्कल्स का वैल्यू है 34. सो 1 सर्कल मीन्स 34 का 1 सर्कल इज 34 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द 17. 17 + 17 को आप ऐड करोगे तो वो आएगा इक्वल टू 34. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो. आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने में फोकस करें. PYQ MCQs तो आप फिर सोल्व कर ही लेंगे. इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू.